شاہ محمود صاحب منسٹر صاحب اسٹیٹمنٹ دے دیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہ بتا دیا منسٹر صاحب نے, وہ ڈائریکشن بھی میں نے دے دی جاوید بھائی صاحب. جی منسٹر فار فارن افیئرس. جناب چیئرمین شکریہ. جناب چیئرمین, آپ کے اور اس ایوان کے علم میں ہے کہ 29 فروری کو 2 نشستیں ہوئیں, ایک دوحہ میں ہوئی اور ایک کابل میں ہوئی, اور ان 2 نشستوں سے ایک امید کی کرن نے جنم لیا کہ افغانستان میں جو ایک طویل لڑائی جاری تھی ہے اس کے سد باب کی ایک امید کی کرن پھوٹی. ہم سمجھتے ہیں اور پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ ایک مثبت پہلا قدم ہے, اور امکان کیا جا سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے افغانستان میں امن اور استحکام حاصل کرنے میں ہمیں کامیابی ہو. جناب مولانا, آپ جانتے ہیں کہ 19 سال کی جو جنگ ہے, طویل لڑائی, وہ آسان نہ تھی, اور اب جو ایک پہلا قدم اٹھایا گیا ہے امن کی طرف, یہ بھی کوئی آسان راستہ نہیں ہے. کم از کم مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ یہ راستہ بھی دشوار ہوگا, اور اس کے اندر بھی بہت سی اس کے نشیب و فراز ہوں گے, رکاوٹیں ہوں گی, اور کئی قوتیں ہوں گی جو اس راستے کو ترجیح نہیں دیتی. بہرحال یہ کہنا کہ درست ہوگا کہ مختلف سٹیک ہولڈرز کو یکجا کرنا اور اس نقطے پر متفق کرنا کہ افغانستان کے مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے, اور آپ نے طاقت, آپ نے وسائل, آپ نے ٹیکنالوجی کو آزما کے دیکھ لیا, اور 19 سال سے یہ جو آپ کی کوشش ہے, کاوش ہے, وہ جاری ہے, لیکن سیر حاصل نہیں رہی. تو پھر کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے, اور ہم اس چیز کو ہمیشہ باور کراتے رہے, پاکستان باور کراتا رہا کہ the best way forward is a negotiated political settlement. دنیا قائل نہیں ہوتی تھی, بالآخر ایک ماحول بنا اور اس پر لوگ قائل ہوئے کہ اس راستے کو آزمانے کی کوشش کی جائے, اور یہ 19 سال کا تجربہ. جی رانا صاحب سنیں پلیز. جی 19 سال کا تجربہ, $1 ٹریلین سے زیادہ اخراجات اور ہزاروں جانوں کے ضیاع کے بعد یہ ایک کنورجنس جو ہے یہ ایمرج کی, اور اس وے فارورڈ کے لیے ہمیں ایک امید کی کرن جو ہے وہ سامنے دکھائی دیتی ہے, جس کی مشکلات کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے. طالبان اور جن کے ساتھ نشستیں ہوئیں, ان کے اندر جو خلیج تھی وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ایک دوسرے پہ وہ وار کرتے رہے, ایک دوسرے پہ حملہ آور ہوتے رہے, اور جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. لیکن خدا کر کے وہ جو کچھ انہیں بھی قائل کرنے میں پیش رفت ہوئی کہ کب تک یہ لڑائی جاری رہے گی, اور کوئی دوسرا راستہ تلاش کیا جائے, اور نیگوشیٹنگ ٹیبل کو پہ آیا جائے, بیٹھ کے گفت و شنید کی جائے, اور کوئی ایسا راستہ نکلتا ہے جو دونوں اطراف کے لیے قابل قبول ہے تو اس راستے کو ترجیح دی جائے. بہرنو اس میں بھی پیش رفت اللہ نے کیا, کچھ ہوئی, اور وہ قائل ہوئے کہ ہاں بیٹھتے ہیں, گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اب جب اس پہ آمادگی کا اظہار ہوا تو پھر کیونکہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ طویل سے چلا آ رہا تھا تو پھر ایک اور شوشہ کھڑا ہو گیا کہ ہاں ہم مان تو گئے
لیکن یہ جو ڈیلیگیشن تشکیل پایا ہے, کیا یہ اس کے پاس وہ اتھارٹی بھی ہے؟ از اٹ اتھارٹیرین ڈیلیگیشن, اتھارٹیٹو ہے کہ نہیں؟ تو اس پہ بھی بالآخر اس قسم کی وہ لوگوں کو وہاں شمولیت ملی, جس سے کہ سب قائل ہو گئے کہ واقعتاً انہیں ان کے پاس اختیار بھی ہے اور ان کو ان کی جو قیادت ہے اس کا اعتماد بھی ہے. تو بات آگے چلی. جناب والا, کل بھی اور میں کہوں گا آج بھی ایسی قوتیں موجود ہیں جو سکیپٹکس تھے اور سکیپٹکس ہیں, آج بھی ہیں, امریکہ میں بھی ہیں, افغانستان میں بھی ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ یہ جو ہے یہ آگے بڑھ نہیں پائے گا. ایک رائے ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ مختلف آرا ہوا کرتی ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے سود ہوگا. لیکن ایک طبقہ ایسا بھی اب ابھرا ہے جو سمجھتا ہے کہ ہم نے تقریباً 2 دہائیوں سے اس راستے کو اپنایا ہے, آزمایا ہے, اور سٹیل میٹ جاری ہے, اور اگر اس کو ہم جاری رکھیں گے تو سٹیل میٹ ہوگا, اس سے علاوہ کوئی بات آگے بڑھتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی نہیں ہے. اور پھر یہ بھی جناب چیئرمین آپ اس بات سے واقف ہیں کہ سپوائلرز کل بھی تھے اور سپوائلرز آج بھی ہیں, اور وہ بھی چاہیں گے کہ وہ اپنے مقاصد جو ہیں وہ حاصل کریں. اور وہ سپوائلرز جو ہیں وہ افغانستان کے اندر بھی ہیں اور افغانستان کے باہر بھی ہیں, یہ بھی کسی سے چیز پوشیدہ نہیں ہے. جناب والا, ان تمہیدی کلمات کے ساتھ میں اب آپ کی خدمت میں چند سیلین فیچرز پیش کرنا چاہوں گا جو گفت و شنید ہوئی امریکہ کے درمیان اور طالبان کے درمیان, امریکہ کے درمیان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان. پاکستان اس کا حصے دار نہ تھا نہ ہے. ہمارا رول فیسیلیٹیٹر کا, سہولت کار کا تھا اور رہے گا, اس سے زیادہ ہو سکتا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ فیصلے افغانستان کے فیصلے ہیں اور افغانستان کے فیصلوں کا حق بھی اور مناسب بھی یہی ہے کہ افغان لوگ کریں. اب اس میں ایک چیز جو طالبان کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی وہ یہ تھی کہ غیر ملکی فورسز جب تک افغانستان میں ہیں تو پھر تو یہاں امن بھی نہیں ہو سکتا اور گفتگو بھی نہیں ہو سکتی, اور ہماری جو لڑائی جو ہے وہ آکوپیشن فورسز کے خلاف ہے, اور جب تک ان کے انخلا کی بات نہیں ہوتی تو بات آگے بڑھ ہی نہیں پائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا نقطہ تھا, اور اس نقطے پر 2 پوائنٹ آف ویوز تھے. بہرنو اس پہ پیش رفت ہوئی, اور یہ ان کا ایک بہت جو کلیدی نقطہ تھا اس پر آمادگی ہو گئی کہ ہاں وڈرال کا ایک اشارہ مل گیا, اور اس پر جب وڈرال کی بات ہو گئی تو انہیں اطمینان ہوا اور نشست آگے بڑھنے کے امکان پیدا ہو گئے. اب جب وڈرال کی بات ہوتی ہے تو پھر سوال اٹھا کہ اگر وڈرال ہوتا ہے تو کیسا ہو, یک لخت بھی ہو سکتا ہے, اور یک لخت اگر وڈرال ہوتا ہے تو اس کے اپنے اثرات, اس کے اپنے مضر اثرات ہو سکتے ہیں, اور ماضی کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے کہ اس سے ایک ویکیوم کریٹ ہوا, اور اس ویکیوم کو جن قوتوں نے فل کیا وہ آپ کے سامنے ہے اور ہم نے بھگتا ہے, خاص طور پہ افغانوں نے بھگتا ہے اور پاکستانیوں نے بالخصوص اس کو بھگتا ہے. اب وڈرال تو ہو, لیکن وڈرال رسپانسبل وڈرال ہو, اور یہ پاکستان کی خواہش ہمیشہ سے رہی ہے کہ وڈرال ہونا چاہیے پر رسپانسبل ہونا چاہیے. تو اس میں بھی ایک میں سمجھتا ہوں ایک مناسب راستہ مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ اس کو سٹیگر کیا گیا ہے کہ ایک آغاز ہو جائے گا اور 135 دنوں کے اندر ایک بہت بڑی کمک وہاں سے روانہ ہوگی, اور جو ایگزسٹنگ لیول ہے وہ کم ہو کر 8,600 پر لایا جائے گا
और 5 जो बेसिस हैं मिलिट्री बेसिस, उनका इनखला पहले हो जाएगा और फिर बकिया जो फोर्सेस हैं उनमें फौजियों के अलावा जो उनके और ट्रेनर्स हैं और जो हैं सहूलतकार, वो अगले 9.5 माह में उनका इनखला हो जाएगा और टोटल विड्रॉल जो है ये 14 माह इसमें दरकार होंगे। जनाब वाला, दूसरा जो अहम नुक्ता जो इसमें, ये तो तालिबान का एक बहुत कीमती और अहम नुक्ता था, दूसरा नुक्ता जो दूसरी जानिब लोग बैठे हैं जो उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे, उनके ज़हन पे जो सवार था वो 9/11 और उस 9/11 से जो उनकी कौम को धचका पहुंचा और जो वहां अमवात हुई, अब आपके सामने है, तारीख का हिस्सा है, कि क्या हम फिर किसी ऐसे वाक़े का शिकार तो नहीं हो जाएंगे? क्या फिर अफगानिस्तान की सरजमीन को कोई और कुव्वत, कोई और दहशतगर्द तंजीम इस्तेमाल करके फिर हमारे मेन लैंड पर या हमारे जो दूसरे जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, हमारे एलाइज हैं, उन पर ज़रब तो नहीं लगाएंगे? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि दूसरी तरफ जो उनसे गुफ्तगू कर रहे थे वो इस बात पर मुत्तफिक हों और कायल करें उनको कि हम ऐसी इजाजत नहीं देंगे और हम कमिटमेंट करते हैं कि अल-कायदा या इस किस्म की और दहशतगर्द तंजीमों को अफगान सरजमीन अमेरिका या उनके एलाइज के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी दहशतगर्दी के लिए। तो ये भी एक बहुत जरूरी जुज था इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए। फिर कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैं पहले अर्ज कर चुका कि एक ट्रस्ट डेफिसिट रहा है, अब उसको, उस गैप को ब्रिज करने में वक्त लगा और वक्त लगेगा। तो उसके लिए कुछ सीबीएम्स, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दरकार हैं और उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जिसका जिक्र हुआ, जिस पर तबादला ख्याल हुआ उनके दरमियान, वो था कि प्रिजनर्स की रिलीज। और प्रिजनर्स की रिलीज की जब बात आती है वो एक तरफा नहीं है, वो दो तरफा है कि अगर जो प्रिजनर्स का मुतालबा तालिबान कर रहे हैं उनको भी रिहा किया जाएगा और जो तालिबान के पास कैदी हैं दूसरी तरफ के, उनको भी रिलीज किया जाएगा। तो इस पर भी एक जो कैसे कहते हैं ना, ये एक इंपॉर्टेंट सीबीएम है। उसमें भी थोड़ी सी अब एक बहस चल पड़ी है कि भाई वो कैसे होगा, कितनी तादाद में होगा, किस रफ्तार से होगा। वो आपने देखा कि 2 आरा सामने आई, बट आई एम श्योर वो जो साहिबान हैं जिन्होंने आपसे गुफ्तगू की है वो उसको तय करेंगे, उनको तय करना चाहिए। जिन्होंने तमाद दिलवाया था, जिन्होंने तमाद लिया था, वो उस पर पेशरफ्त करेंगे। दूसरी जनाब जो इसमें एक सीबीएम के तौर पर और बात को आगे बढ़ाने के लिए जो एक कदम दरकार था और है, वो है कि चले ये तो एक चीज तय हो गई तालिबान और अमेरिका के दरमियान, लेकिन अगर वहां अमन आना है, वो अमन तो तभी आएगा कि जो अफगान हैं जो आपस में उलझ रहे हैं उनमें रिकंसिलिएशन हो और उस रिकंसिलिएशन के लिए गुफ्तगू हो, नेगोशिएशंस हो। तो जैसे ये पहला मुआहदा होता है और वहां दोहा में और जॉइंट डिक्लेरेशन होती है काबुल में, तो एक नेगोशिएशंस का आगाज किया जाएगा जो इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस होंगी। अब इस पे मेरी वहां दोहा में जो नॉर्वे की वजीर खारजा है उनसे मुलाकात भी हुई, तो उन्होंने फरमाया कि हमने ऑफर किया है कि हम उसको होस्ट करने के लिए तैयार हैं और ऑब्वियसली फैसला सबने मिलकर करना है। उनकी ऑफर मौजूद है कि वी आर रेडी टू होस्ट एंड फैसिलिटेट। अब ये आपस में मुझे उम्मीद है कि बैठ के वो तय कर लेंगे कि कहाँ होना चाहिए
ऑस्लो भी एक जगह हो सकती है और तजावीज़ भी होंगी यकीनन, लेकिन एक ऑफर मौजूद है। ये दूसरा। तीसरा जनाब, जो कदम जिस पे बात हुई और मैं समझता हूं वो भी एक एतमाद की बहाली के लिए कदम है कि ये है कि जो सैंक्शंस हैं उनको असर नौ देखा जाए और उस पर नजरसानी की जाए। इसी के साथ साथ ये भी उसमें एक सामने चीज आती है कि अमेरिका दीगर जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान हैं उनसे रुजू करेगा, उनसे एंगेज करेगा, ताकि जो यूएन की लिस्ट पे हैं इनके तालिबान के रहनुमा, उनको उस लिस्ट से खारिज किया जाए। और वो भी एक बहुत बड़ा एक सीबीएम भी है और उनकी ख्वाहिश भी थी और है। चौथी चीज जनाबे वाला कि आइंदा अमेरिका और उसके जो हलीफ हैं वो अफगानिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें मदाखलत से परहेज करेंगे। तालिबान से भी ये तकाजा, और तालिबान ने भी इस चीज का इशारा दिया कि वो भी एक क्लियर पैगाम देंगे कि अमेरिका और उनके हलीफों को निशाना नहीं बनाया जाएगा और वो जो तंजीमें हैं जो दहशतगर्दी करती हैं उन्हें अफगानिस्तान में जगह नहीं दी जाएगी, उनसे ताउन नहीं किया जाएगा अफराद से या उन ग्रुपों से। और वो एलिमेंट्स जो इस किस्म की तखरीबकारी में मुब्तला होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग और उनकी फंड रेजिंग की इजाजत भी नहीं होगी। इसके साथ जनाबे वाला अगली जो चीज सामने आई वो ये है कि ये तो क्या सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान चीज तय हुई या दो धड़ों के दरमियान चीज तय हुई, क्या ये कागज का टुकड़ा है या इस टुकड़े की कोई अहमियत भी होगी? तो ये चीज भी सामने आई कि नहीं, ये कागज का टुकड़ा नहीं है और अमेरिका ने ये एक इशारा दिया, एतमाद दिलवाया कि हम इस एग्रीमेंट को जो 29 फरवरी को जिसपे ज़ल्मे खलीलजाद, एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलजाद और दूसरी तरफ से मुल्ला ब्रादर ने दस्तखत किए, ये जो कागज का ये जो पीस एग्रीमेंट है ये सिक्योरिटी काउंसिल से, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से इंडोर्समेंट इसकी हासिल की जाएगी। और जब सिक्योरिटी काउंसिल की इंडोर्समेंट आ जाती है तो फिर पूरी उसमें P5 के मेंबर्स भी हैं, दीगर मेंबरान भी हैं, तो पूरी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की उस एग्रीमेंट पर मोहर लग जाती है और इंटरनेशनल उसको अथॉरिटी और उसको वो वजन और अफादियत मिल जाती है। जनाबे वाला फिर ये भी बात चली और ये भी एक अच्छी पेशरफ्त है कि एतमाद दिलवाया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि 19 साल 20 सालों में वहां बहुत तबाही हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है। तो अमेरिका ने कहा कि वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन फॉर रिकंस्ट्रक्शन इन अफगानिस्तान, उसके लिए भी उन्होंने ये आगे बढ़ने का और ये इस अज़म का इजहार किया। और ये भी एक जरूरत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। जनाबे वाला, इन सीबीएम्स के बाद और जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो फिर भी आपको मैं कह रहा शकूक व शुबात में पना, तो फिर लोगों ने कहा कि देखिए ये बात तो ये कर रहे हैं, क्या इनमें सलाहियत है कि वो वायलेंस को कम करने में, या उनकी इतनी अथॉरिटी है कि वो जब कहते हैं कि रिडक्शन इन वायलेंस करवाएंगे और कल को अगर हम चाहते हैं कि एक परमानेंट सीज फायर हो जाए, क्या इनमें कैपेसिटी है इसको इन्फोर्स करने की?
तो इसको भी आजमाया जाए, इसको टेस्ट किया जाए। तो तारीख तय हुई कि जनाब फला तारीख से लेकर फला तारीख तक, यानी कि 22 से लेकर 28 तारीख तक, अगर आप हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं कि अक्रॉस अफगानिस्तान यू कैन अनाउंस एंड इंप्लीमेंट ए रिडक्शन इन वायलेंस। और जनाबे वाला वो भी हुआ और आपने देखा और उसमें एडमिट किया गया। और जब मेरी दोहा में मुलाकात हुई वहाँ, जिसमें एम्बेसडर ज़ल्मे भी थे और उनके जो फौजी नुमाइंदगान वो भी थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो आदो शुमार से हमने कैलकुलेट किया है, ये जो दिन थे पिछले 4 सालों का हमने जायजा लिया है, दे वर द मोस्ट पीसफुल, यानी कि इफेक्टिवली there was a reduction in violence. तो उससे they demonstrated the will and the authority कि ये कर सकते हैं। और इससे उम्मीद लगी कि हाँ, अगर ये कहते हैं और तो ये शायद उसको निभा भी सके, इनमें सलाहियत गालिबन है। और जो हमने आगे एक ड्यूरेबल पीस की तरफ आगे बढ़ना है, तो उसके लिए एक परमानेंट कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर जो है वो दरकार होगा। जनाबे वाला, फिर हम क्या चाहते हैं? पाकिस्तान की पहले दिन से ये ख्वाहिश थी और है, होनी भी चाहिए, कि अफगानिस्तान पुरअमन मुस्तहकम हो और उनका अमन हमारे अमन से जुड़ा है। अगर हम अपने यहां अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं तो हमें अफगानिस्तान में अमन की ख्वाहिश हमारे जहन में, दिल में होनी चाहिए, क्योंकि ये लाजिम और मुल्ज़ुम है। और हम समझते हैं और पाकिस्तान समझता है कि अगर ऐसा हो जाता है, और खुदा करे ऐसा हो जाए, तो उसके बहुत से फवायद हैं। उस पीस का एक डिविडेंड है और उस डिविडेंड का पाकिस्तान पर एक अच्छा असर होगा। और वो क्या है? मैं 3-4 नुक्ते आपके सामने रखना चाहूंगा। नंबर 1, रिकंस्ट्रक्शन अफगानिस्तान की पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट का आगाज हो सकता है, और वो होता है तो पाकिस्तान एक पड़ोसी है, तो आपकी सर्विसेज रिकंस्ट्रक्शन में आपकी इकोनॉमी को एक स्पिन ऑफ उसका इफेक्ट आता है और आपको फायदा होगा। नंबर 2, अगर ऐसा होता है तो एक जो आपकी 2 तरफा तिजारत है, जिसमें इजाफा हुआ फिर कम हुई, तो उसके बढ़ने के इम्कानात फिर रोशन हो जाते हैं। एंड there's a clear possibility of that. फिर जनाबे वाला, अमन से नई राहें खुलती हैं। अमन से हमारी वो ख्वाहिश जो हमारी एनर्जी की डेफिशिएंसी को, जिसका वो उसमें से एक रास्ता निकलता है, और जो प्रोजेक्ट्स जो कागजों पे हैं, जहनों में हैं, जिन पर हम अमल दरामद करना चाहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान का अमन और इस्तेहकाम आड़े आता था, वो उनको अमली शक्ल देने में हम कामयाब हो सकते हैं। और उन 2 प्रोजेक्ट का मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूं। एक कासा 1000 है, जो पन बिजली, सस्ती बिजली, आज हमारा बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो महंगी बिजली है, और हमने अगर सस्ती बिजली लोगों को देनी है तो वो पन बिजली जो हमें वहां से सेंट्रल एशिया से दस्तयाब होगी, उससे पाकिस्तान को फायदा होगा। और इसी तरह अगर हमने गैस की, जो हम लोड शेडिंग से हम रोजमर्रा हम उससे उस चैलेंज को फेस कर रहे हैं, और महंगी गैस का, उससे भी हमें किसी हद तक निजात मिलती है, क्योंकि जो टापी की जो गैस पाइपलाइन है, अगर वो हकीकी उस पर अमली जामा उसको पहनाते हैं तो उससे भी हमें फायदा होता है। इसके साथ साथ रीजनल कनेक्टिविटी, रास्ते खुलते हैं, अमन होता है, रास्ते खुलते हैं, और रीजनल कनेक्टिविटी, क्योंकि ये रीजन की कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा मसला है, इस वजह से इस रीजन में जो इकोनॉमिक जनरेशन है, ग्रोथ है, एक्टिविटी है, वो महदूद है रीजन की सतह पर। और आज आप देखते हैं कि सिर्फ ममालिक नहीं, रीजन्स मुश्तरका तौर पे ग्रो करते हैं, तो उससे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर ए रीजनल कनेक्टिविटी। और फिर जो लैंड लॉक्ड सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उन्हें एक रास्ता मिल जाता है बजरिया गवादर अपनी अशिया को एक्सपोर्ट करने का। और ये जो हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये इससे भी इसका एक बेपनाह फायदा
होता है। जनाब वाला, इसके साथ साथ जो दूसरा जो मुआहदा हुआ जो कि काबुल में हुआ, उसकी भी मैं 2-3 मोटे मोटे नुक्ते आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। उसके की पॉइंट्स, एक तो अमेरिका की कमिटमेंट अफगानिस्तान की लोगों के साथ, जिनके साथ उनका ताउन रहा है कितने अरसे से, कि उनको रीअश्योर कराना कि देखें, हम आज भी आपको कहते हैं कि हमारी जो सपोर्ट है आपकी अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वो जारी रहेगी, हम ला ताल्लुक नहीं हो रहे, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि उनके फाइनेंशियल इश्यूज हैं और चीजें हैं, उसका उनको सहारा दरकार था, है और रहेगा। इसी तरह आपकी जो कैपेसिटी की इन्हांसमेंट है टू रिस्पॉन्ड टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स, उनसे हम गाफिल नहीं होंगे। दूसरी चीज, उन्होंने आमादगी का इजहार किया और कहा वी विल बी रेडी to conduct military operations in order to disrupt and degrade international terrorist groups, कि अगर कोई ऐसे ग्रुप्स हैं और वो आप पर हमलावर होते हैं तो हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम उनको इंगेज करेंगे, हम उनको डिसरप्ट करेंगे। और फिर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक जिसे कहते हैं ना, हमेशा शकूक व शुबहात रहे हैं, हम ना माने या माने रहे हैं, तो उनके लिए वो हमेशा हम उनको बहुत उनको बावर कराते हैं। मैं कई दफ़ा काबुल होकर आया हूं और पहली मेरी एज फॉरेन मिनिस्टर पहली मेरी नशिस्त सदर अशरफ गनी के साथ हुई। पहला जो दारुल खिलाफा जो मैंने विजिट किया वो काबुल था, उसकी अहमियत को समझते हुए, उसके इम्पैक्ट पाकिस्तान को समझते हुए, लेकिन फिर भी वो एक कई चीज़ों पर सवालिया निशान उन्हें रहता है। तो उन्होंने, अमेरिका ने भी कहा कि भाई देखिए, इस पे भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि आपके दरमियान अगर कोई ऐसी गलत फहमियाँ हैं और आप समझते हैं कि एक दूसरे को, आपकी सिक्योरिटी को थ्रेटन आप कर सकते हैं, तो उस पर भी किरदार अदा किया जा सकता है। लेकिन मैंने कल भी कहा और आज फिर मैं कहना चाहूंगा अपने अफगान भाइयों से कि देखिए, हम हमसाए हैं, हम पड़ोसी हैं, जोग्राफिया ने हमें जोड़ा हुआ है, हम एक दूसरे से लाताल्लुक हो नहीं सकते। और मैं अर्ज करूंगा कि हमने और आपने एक तवील कई नशिस्तों के बाद, मज़ाकरात के बाद, हमने एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म इन प्लेस कर दिया है जिसको हम एपैप्स कहते हैं। उसके 5 ग्रुप्स हैं और वो 5 ग्रुप्स इस नौइयत के हैं कि हमारे और आपके दरमियान जितने भी बायलैटरल इश्यूज इमर्ज कर सकते हैं उनका हल हम उनमें तलाश कर सकते हैं। तो आप कोई किसी वहम का शिकार ना हो, हमें मिल बैठकर हमें करना है, क्योंकि जब तक हमारे दिल साफ नहीं होंगे कोई तीसरी कुव्वत हमारा रास्ता नहीं निकाल सकती। हमने अपने मुस्तकबिल के लिए खुद देखना है कि हमारे मफादात में क्या है, अफगानिस्तान के मफाद में क्या है, पाकिस्तान के मफाद में क्या है, इस रीजन के मफाद में क्या है। तो इसको हम समझते हैं कि ये प्रेफर्ड ऑप्शन यही होगा। मेरी कल भी ये राय थी, मेरी आज भी ये राय है। जनाब वाला, मैं एक क्वालिफाई करना चाहता हूं 2-3 चीजें। नंबर 1, पाकिस्तान इस सारी चीज में, ये मज़ाकरात उनके दरमियान हुए, हम मज़ाकरात का हिस्सा नहीं थे, हम सिर्फ फैसिलिटेटर थे, हम कोई गारंटर नहीं है, ना थे, ना है, ना हो सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम ये कहते हैं कि वो जो अमन हमारी ख्वाहिश है, ये सारी ठेकेदारी पाकिस्तान नहीं ले सकता, ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबको इसमें अपना किरदार और हिस्सा डालना होगा। आप सारा बोझ अगर पाकिस्तान पे डाल दें, ये नामुनासिब है और ये दुरुस्त नहीं होगा कि सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान ले ले। कैसे ले ले? बेपनाह कुव्वतें हैं, बेपनाह इंटरेस्ट हैं, बेपनाह मोटिव्स हैं। तो दूसरी और तीसरी चीज कि मैं समझता हूं, और मैंने कहा और शायद कुछ दोस्तों को अफगानिस्तान में ये बात ज्यादा पसंद नहीं भी आई होगी शायद, कि देखिए ये अब एक माहौल बन गया है। अफगानिस्तान की अवाम मेरी राय में जनाब चेयरमैन अमन की ख्वाहिशमंद है। उन्होंने बहुत खून खराबा देख लिया, उन्होंने बहुत बर्बादी देख ली है, वो अमन चाहते हैं। सवाल यह है और आजमाइश किसकी है? अफगानिस्तान की क़यादत की। जो मुख्तलिफ वहां मुख्तलिफ फैक्शंस हैं,
उनकी आजमाइश है, जो लीडरशिप है ये उनकी आजमाइश है कि क्या कैन दे राइज टू द ओकेजन एंड कैन दे चार्ट ए पीसफुल वे फॉरवर्ड और नॉट. दैट is the test of time, and that only time will tell whether they succeed in that or not. पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिल्कुल हैं. क्या है मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं. पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि एक पीसफुल स्टेबल अफगानिस्तान जो अपने हमसायों के साथ पुरअमन रहे. दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा अफगानिस्तान के साथ एक बड़ा मजबूत सियासी और माशी रिश्ता, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस विद अफगानिस्तान. तीसरी ख्वाहिश हमारी है, मैं पहले अर्ज कर चुका, एक रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल, क्योंकि इररिस्पॉन्सिबल हुआ तो उसके मुज़र असरात हम पे पड़ सकते हैं. चौथी, एक सिक्योर और रेगुलेटेड बॉर्डर. पाकिस्तान हमेशा एक रेगुलेटेड बॉर्डर की कोशिश करता रहा है. हमने कोशिश की बायोमेट्रिक सिस्टम किया जाए, वो नहीं मानते. हमने अब कोशिश कर रहे हैं, हम फेंसिंग हमने शुरू कर रखी है और बड़ा तेजी से काम जारी है. हम अपना अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो हमारा जो KPK का बॉर्डर है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी, बलूचिस्तान में जी, और अब आपकी तरफ भी जो बलूचिस्तान में भी उसका आगाज इंशाल्लाह हो रहा है, ताकि वो आपके यहां भी 25-30 हजार यौमिया लोग आते जाते हैं. तो इस किस्म की अगर मूवमेंट होगी तो उसको लोगों पे नजर रखना, कंट्रोल करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो इसको एक सिक्योर और रेगुलेटेड बॉर्डर की हमारी ये ऑब्जेक्टिव है, ख्वाहिश है. फिर अश्योरेंस कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी. आप जानते हैं होती रही है, आप जानते हैं कौन करता रहा है, मुझे उसकी निशानदेही की जरूरत नहीं है. आप पूरे यहां तजर्बाकार और ज़ीरक शख्सियात तशरीफ फरमा है. अगली, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन. किसके? अल-कायदा, दाइश, ISS. हम नहीं चाहते कि ISS का फुटप्रिंट वहां ग्रो करे, और ISS का फुटप्रिंट ग्रो करता है तो इट विल बी डिस्टेबलाइजिंग, नॉट फॉर जस्ट अफगानिस्तान पाकिस्तान, फॉर द रीजन. तो ये हमारी ख्वाहिश है. अब फिर इन्हांसिंग कनेक्टिविटी, सेंट्रल एशिया में पहले कह चुका. और फिर जनाबे वाला 4 दहाइयां पाकिस्तान ने लाखों अफगानों को यहां बड़ी मोहब्बत और इज्जत के साथ रखा. और अभी हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी कराई इस्लामाबाद में, जिसमें सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के खुद उसमें तशरीफ फरमा थे. और हमने यही कहा कि दुनिया ला ताल्लुक हो गई और पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से इनको संभाला है और आखिर इनको घर लौटना है. तो हमारी ख्वाहिश है कि अमन हो, इस्तेकाम हो और बाइज्जत तरीके से, बावकार तरीके से वो अपने घरों को लौटे. और फिर जनाबे वाला हमारा जो आखिरी जो मैं नुक्ता यहां कहना चाहता हूं वो ये है कि हमारी कोशिशों के बावजूद अफगानिस्तान में एक तबके में पाकिस्तान के बारे में खुदा वास्ते एक नेगेटिव परसेप्शन है, और उस नेगेटिव परसेप्शन को दूर करना हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए. और उसके लिए हम जुस्तजू कर रहे हैं, हम अपनी इंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं. वी वांट टू रीच आउट to other ethnic groups beyond the Pashtuns in Afghanistan. ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, तुर्क हैं और बहुत से हैं, एथनिसिटीज हैं, उनसे भी हम चाहते हैं कि हम इंगेज करें. हमारी रेड लाइंस भी हैं जनाबे वाला, वो रेड लाइंस भी मैं आपकी खिदमत पे रखना चाहूंगा. नंबर 1, कोई जॉइंट ऑपरेशंस हम उनके ना ख्वाह थे ना ख्वाह हैं. नंबर 2, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए हम अफगानिस्तान में कोई सिक्योरिटी रोल हम नहीं देखना चाहते, और हमारी तशवीश जो है वो बजा है, उसकी एक तारीख है. और तीसरा कि खुदा न खास्ता कोई वहाँ इंस्टेबिलिटी होती है तो कोई नया इनफ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज हम उसका शायद बोझ बर्दाश्त न कर सके. तो ये हमारी चंद हैं. अब चैलेंजेस, जहां मैं कह रहा हूं अपॉर्चुनिटीज का मैंने जिक्र किया, तो वहां चैलेंजेस का जिक्र भी लाजिम है. और चैलेंजेस क्या है जनाबे वाला? पहला चैलेंज वो है वो जो मिसट्रस्ट है इन सम एलिमेंट्स ऑफ अफगानिस्तान एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी. आज भी कुछ लोग हैं जो समझते हैं पाकिस्तान नेक नियति से, दयानतदारी से, इन गुड फेथ हम आगे बढ़े हैं, लेकिन फिर भी
वो हमारा ये जो हमारा एफर्ट है टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी, उस पर वो उनको एक सवालिया निशान उनके ज़हनों में है, उसको दूर करना। फिर जनाब दूसरा चैलेंज जो आ सकता है, जिसके लिए हमें तैयार होना होगा मिनहसल कौम, वो है एरप्शन इन वायलेंस। और अगर वहां वायलेंस हो जाती है अफगानिस्तान में और उसका स्पिल ओवर इनटू पाकिस्तान, creating instability in Pakistan is the challenge that we have to be cognizant of. फिर अफगानिस्तान में एक उनका तारीख कहती है कि उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो खासी लूस रही है। उनका एक जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऐसा रहा है कि जो उनके जो इलाके हैं वो खासे खुद मुख्तार रहे हैं, तो वो है। और आज के हालात में तो आप जानते हैं कि इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसको कई चैलेंजेस दरकार हैं। उनकी तफसीलात में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आपके इल्म में है ऐलान हुआ एक इलेक्शन का और उसके बाद कुछ चैलेंजेस भी आए। अशरफ गनी साहब का एक मौक़िफ़ है, अब्दुल्ला साहब का एक मौक़िफ़ है, और वो जो चैलेंजेस हैं इंटरनल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज इन अफगानिस्तान, दैट इज अ चैलेंज दैट वी कैन नॉट ओवरलुक। फिर एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ हैं ऑफ हॉस्टाइल कंट्रीज or presence of Al-Qaeda and Daesh. And then lastly, the division on ethnic lines, it's dangerous and it's a challenge. In my closing remarks, Mr. Chairman, मैं ये कहना चाहूँगा मोज़ेज़ मेंबरान से, और इनकी गुफ्तगू भी हुई, लोगों ने बात भी की, और उस गुफ्तगू से यकीनन हम रहनुमाई हासिल करना चाहेंगे कि कोई अक्ल कुल कोई नहीं है और कोई ये दावा नहीं कर सकता कि सारे हल हमारे पास है। ये पार्लिमान, ये सेनेट, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, इसकी आरा मैं समझता हूं हमारे लिए रहनुमाई का काम दे सकती है। इस हाउस में मुख्तलिफ जमातें हैं और ये किसी एक हुकूमत का इशू नहीं है। कई हुकूमतें आईं और कई हुकूमतें गईं और अफगानिस्तान का मसला तसलसल से जारी है, और आगे का रास्ता भी अभी खासा पेचीदा है, दुश्वार रास्ता है। तो इसके लिए एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना, यकसुई होना, यकसुई से आगे बढ़ना जो है वो हमारी जरूरत है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू, इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू। लेट्स नॉट फॉरगेट व्हाई, बिकॉज देयर आर मेनी एक्टर्स, there are many actors over there, internal bhi hai, external hai, and just to name a few, how difficult it is to put the jigsaw puzzle together. तालिबान है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी ख्वाहिशात है, उनकी अपनी ज़रूरियात है। अशरफ गनी साहब हैं, उनके अपने तकाजे हैं, उनका अपना एजेंडा है, उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं। अब्दुल्ला साहब हैं जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहे हैं, लेकिन उनकी आज अपनी एक सोच है। फिर अफगान इंटेलिजेंस और अफगान इंटेलिजेंस के ताने बाने जो हैं उनकी अपनी एक दास्तान है, वो भी आप जानते हैं। फिर अमेरिका है, अमेरिका की ज़रूरियात है, अमेरिका की ज़रूरियात में इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी ख्वाहिश है, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ख्वाहिश के साथ साथ उनकी एक अपनी इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट की अपनी सोच है। लेट्स नॉट फॉरगेट उनकी अपने उनके इश्यूज हैं, और उनके इलेक्शंस होने हैं, और इलेक्शन में मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि नवंबर के बाद वहां क्या होगा। हो सकता है सदर ट्रंप दोबारा आ जाए, हो सकता है कि कोई एक नई वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाए, उनकी सोच में तसलसल होता है, नहीं होता, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। इसके साथ साथ जनाब ईरान है, ईरान पड़ोसी है। अमेरिका के ईरान के ताल्लुकात तो कशीदा थे, कशीदा हैं और रहेंगे इन द फोरसेबल फ्यूचर। लेकिन देखना यह है कि ईरान का बॉर्डर भी जुड़ता है, ईरान को दाइश से खदशात भी हैं, ईरान के यहाँ रेफ्यूजीज भी हैं अफगानिस्तान के, और ईरान जो है वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात, उनकी गुफ्तगू ही नहीं है, उनकी बातचीत ही नहीं है। यहाँ भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक फैसिलिटेटिंग रोल प्ले कर सकता है, और अमेरिका का ताल्लुकात नहीं है तो हम बिल्कुल, मेरी राय में हम उसमें एक किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं कि जो आप बात ईरान से नहीं कर सकते हम कर सकते हैं। हमारे ईरान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ताल्लुकात हैं, और मैं आज फिर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जवाद जरीफ साहब का, जो कल उन्होंने जो एक ट्वीट किया है, और जो दिल्ली में
जो मुसलमानों के साथ जो एक खून की होली खेली गई है, ईरान के मत भूलिए, ईरान के हिंदुस्तान के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात रहे हैं, मेजर उनका बायर है उनके ऑयल का। लेकिन तुर्की, आपने देखा आपके जॉइंट सेशन में तुर्क सदर ने जो आके बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया कश्मीर पर, और आज ईरान ने जो बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है वो कश्मीर के मसले पर, ये बड़ी हौसला अफ़ज़ा चीज़ है। इसके साथ साथ रूस है जनाब, रूस की अपनी तारीख है अफगानिस्तान के साथ, उसकी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दे ऑल्सो हैव अ डिज़ायर टू हैव एन इन्फ्लुएंस इन द रीजन। और हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का एक जो कंटिन्यूस रोल ऑफ अ स्पॉइलर था और आइंदा भी हो सकता है। They would always want a two-front situation for Pakistan. They would always want Pakistan to remain engaged in Afghanistan because they would want our resources, our attention diverted, divided, क्योंकि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, जो कितनी नाजुक है, कितनी पेचीदा हो चुकी है इनकी हमाकतों की वजह से, और इस वक्त जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की वजह से जो उनकी जो वो आपके सामने है। तो ये सब चीजें हैं जनाब वाला जिनको हमें जहन में रखना है। मैं बात खत्म कर रहा हूं, अजान आ गई है और आपसे मुस्तफीद होना है आपके ख्यालात से। थैंक यू।